Before we start explaining you about the pathway provided by Eurasia, let me explain you there are two pathway. One is going to be a academic pathway, and the second one is going to be a career pathway. And academic pathway and career pathway, how they both are different. All right, that's a very important thing to understand for the students. Both pathways include, or an integral component of both pathways, of course, studies. So, academic pathway is the pathway where students aim at a university degree, and during that university degree, working experience is not a compulsory part of their education, sort of. So, working is not a requirement for you to get your degree. Students, however, on bachelor's or master's level, of course, can work part time, get the part time jobs, and still earn money, or get also internships, and that can be also paid internships, but they will not spend as much time working during their academic pathway or degree as those who are into the career pathway. The career pathway is a program, a type of the program on a degree level or in a vocational training level where students spend equal amount time working and studying, and that's an integral part of their curriculum to even get a diploma or a degree. Great. So, students, now you know the difference between career pathway and the academic pathway. Students, now we're going to discuss about career pathway. Now, career pathway is basically more focused on job market, as the name sound itself. So, Ksenia, when it comes to career pathway, what is exactly the career pathway, and what kind of different pathways you have in career pathway? Great. Career pathway is actually a unique thing, and it's very common and popular now in Germany because it helps students or young people to actually enter the job market as soon as possible, and it actually prepares them for the job market better than any other possible program, as studying and teaching them goes hand in hand with actually working and getting the job experience. Now, career pathway is possible on every level of education. It can be vocational training, it can be a bachelor's degree, it can be a master's degree, and it can also be an MBA. So whether you want to start from the very beginning of your academic career or generally your career, or whether you want to go for an advanced degree, you can find always a way to get a program where you can work and study at the same time. So basically, with very little investment or almost none investment, you can start your career in Germany and start getting paid the moment you start working, the moment you land in Germany, you are getting paid for being a student and doing this program. Okay, so this means that if I'm coming for nursing, physiotherapy, or radiologist, or any of these health science pathways, which is one of the pathways you have in health science, I will be a class 12 student from India. I have to be between 18 to 24 years old, and I have to finish my B2 level German language from India, from Eurasia Institute, or if I have done from some other institute like Gotha Institute, it can also be seen in how which more credits you have to take. But if you have this thing, then definitely you can come to Germany for career pathway, where you learn in Germany from the very first month you start getting a salary. Correct. And that's the best thing about it. You learn German when you are still in your home country, which allows you to save on living costs in Germany. You also get prepared for the job interview and you will get a job contract while you are still in India. So the moment you come to Germany, you start working, studying, and earning as well. That relates, for example, to the vocational training if you want to be a nurse, if you're doing midwifery, radiology, if you want to be in the anesthetic field. So there are plenty of options in the healthcare sector where you can start your career through the career pathway. So students, basically, to know more about career pathway, we're gonna host another session where we're gonna discuss about different pathways available and their opportunities. But more or less, you've understood the concept. Study and work pathway in Germany is for those people who are 18 to 24 years old, who are ready to do a B2 level German language from India itself,
and who want to come to Germany and work from the very first day and get paid by the employer a certain amount, which is between 1,000 to 2,000 euros. Am I right? Correct. Right. And once you finish their pathway of 3 years, you have been paid every month by employer. Plus, then you will be able to get a full-time job with the same employer with Correct. a better salary. Correct. I was told by your colleague around 30 to 25,000 euros Right. yearly salary we're talking about, Yes. right? And other than this, while you are in Germany completing your career pathway, you are also allowed to work 10 hours separately somewhere else, right? So this means that you are going to work with your employer, you're going to get paid for that. You can have work for some other employer for 10 hours, again, you're going to get paid, and then you will have a job guarantee from the same employer once you finish the program. Cassini, exactly this is what it means. Right. And on top of that, your working experience during your study and work program already counts as your working experience for PR, which means after graduation from the 3 year program, you only need to work for another 1.5 year full time to actually qualify for the PR instead of the regular 3 years, which happens after a normal degree. So basically, the 3 years you have spent on your vocational training pathway, where you made the money on every month also, you are also acquiring your PR years as well. So the 3 PR year is being basically taken as 1.5 times, right? Correct. And then you only have to work 1.5 hours, 1.5 years more, and you have your permanent residency you can claim. And when they can claim the passport? When they can apply for the passports? After 8 years of living in Germany. Total 8 years. Yeah. So after 8 means that you already lived there for 3 plus 1.5, which is 4.5, and then another, I believe, 3.5 you have to live, and you will be able to apply for German passport. But you will have permanent residency after 1.5 years only. So once you get the permanent contract after your 3 year degree, you can also bring your dependent if you're ready to settle down and you want to bring a wife or husband from India. You can do that. Wow. And there won't be any bureaucracy hurdles, so you can do that easily. Great, student. That's another new update, that once you finish your vocational training pathway and you're on your job permit, you can bring your spouse and your dependent kids to Germany also. So students who do not want to waste more time and they want to go on the job market at the earliest possible, note that these career pathways for those people who are more into traditional education, who are more into vocational education. So basically, if you are interested to apply to Germany for academic pathway, or you want to apply for a career pathway, please contact us and we'll be happy to give you a session, a dedicated session where you can understand which pathway is better for you. But in both the pathways, please note that you have to learn German language from India itself. A1 only for academic pathway and B2 for the career pathway. Right. Thank you, Ksenia. Thank you so much for this session. And I think we have a lot of information now. And for more information, we will students going to put the question in the comment. And once we have more comments, we can do a second round of the webinar. Sure. And we're looking forward to seeing you in Germany. Students, मेरे साथ असद हैं जो कि रुद्रपुर एरिया से आते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड में पड़ता है. असद से मेरी यहाँ मुलाकात हुई यूरेशिया इंस्टीट्यूट में, और करियर पाथवे को लेके मेरा इनसे डिस्कशन चल रहा था. मैंने कहा कि एक छोटी सी आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं. तो असद, आप वहाँ से जब इंडिया से यहाँ आए हैं, तो इंडिया में आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? इंडिया में मेरी क्वालिफिकेशन 12th कर रखा था, फिर उसके बाद बैचलर्स हो रही थी. अच्छा, उसी टाइम में फिर मुझे पता लगा, फिर मैंने लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी वहाँ से. ओके, तो बेसिकली आपने इंडिया में बैचलर डिग्री शुरू की थी. कब की थी शुरू आपने? मैंने 2018 में शुरू की थी. 18 में शुरू करी है. और कौन सी की थी शुरू? बैचलर इन फार्मेसी. बैचलर इन फार्मेसी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे आप? गलगोटिया यूनिवर्सिटी. ठीक है जी. तो यानी कि गलगोटिया में 2018 में हमने बैचलर इन फार्मेसी शुरू कर ली. उसके 18 से 19 हमने पढ़ा, 19 से 20 पढ़ा हमने. 20 में हम चले गए थे कोविड के अंदर, राइट. तो 20 फिर 21 तक आपने डिग्री पूरी करी है यहाँ पे? जी, मैंने पूरी करी. कितने साल की डिग्री है वो 4 साल की डिग्री है. 2022 में पूरी हुई है, जस्ट पूरी हुई है. फिर उसके बाद यहाँ पे. तो यानी कि आपने 18 से लेकर 22 तक वो पूरी कर ली. ठीक है. और जब आपने पूरी करी 22 में, तो आपने तब तक यहाँ पे यूरो एशिया आपने अब ज्वाइन किया 6 महीने पहले.
मैंने यूरासिया उसी बीच में पैंडेमिक में ही ज्वाइन कर लिया था। मैं ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहा था ठीक है, लैंग्वेज की। समझ गया मैं। तो आपने 6 महीने के अंदर वहां पे B2 लेवल अचीव कर लिया था? 6 to 8 मंथ्स में। 6 to 8 मंथ में, ठीक है। तो 6 से 8 महीने के अंदर आपने जो लैंग्वेज ली वहां पे इंडिया में ली, ये सिर्फ आपने ली है या आपके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंडिया में बैठे बैठे B2 लेवल कवर करा? बहुत से लोग थे। अच्छा, 2-3 को तो मैं जानता ही हूँ। एक मेरे अच्छा। साथी मेरी क्लास में है ठीक है, और एक और आने वाला है 2 इनटेक में। ओके फाइन। सो बेसिकली जो जो मुझे बताया जा रहा है, जो मुझे ब्रीफिंग मिली है, मैं आपसे फिर चाहता हूँ कंफर्म करना भाई। प्रोग्राम ये है कि आपने इंडिया से 12th करी हो, आप 18 से 24 साल के हो और आपको बेसिकली B2 लेवल आपने इंडिया से आने से पहले करके आना है। यहाँ आते ही आपको मिलेंगे पाथवे, वोकेशनल पाथवे मिल रहे हैं, जिसमें आप जैसे ही आप ऐलान करोगे आपने 3 साल का वोकेशनल कोर्स करना है और उस कोर्स में 1000 से 2000 यूरो एम्प्लॉयर आपको पे करता है पहले महीने से। जी, ये मैं बात दोबारा से पूछूंगा कि जब आप यहाँ पे आए, आपके लिए 6 महीने मुझे हो चुके हैं, तो ये पूरे 6 महीने में जैसे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी करी, अपने पेपर को पूरा करा, तो फर्स्ट मंथ से पैसे आने शुरू हो गए? जी, फर्स्ट मंथ से। अगर आपको पेपर वर्क में ज़्यादा टाइम लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स लग रहे हैं, तो आपकी 2 मंथ्स की एक साथ सैलरी आएगी। अच्छा, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ टाइम लगा था, क्योंकि अकोमोडेशन यहाँ बहुत काफ़ी दूर है, तो मुझे 2 मंथ्स लगे थे, तो 2 मंथ्स की मेरी एक साथ सैलरी आई थी। वेरी गुड। सो बेसिकली और कितनी आई आपकी सैलरी? सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1900 आपको 1900 यूरो सैलरी आफ्टर आई टैक्स। आफ्टर टैक्स? वाओ, 2 मंथ्स के लिए। ओके, सो ये 1900 पर मंथ था या ये नहीं, पर मंथ नहीं था, ये फॉर दी 2 मंथ्स। 2 मंथ्स? यानी कि मैं अगर से बात करूं तो लगभग 950 यूरो आफ्टर टैक्स। तो लगभग 1000 यूरो की अगर हम बात करते हैं, लगभग 1000 यूरो आपको मिल रहा है यहाँ पे आफ्टर टैक्स। और बेसिकली ये आपको पूरे 6 महीने से मिलता हुआ आ रहा है अभी। जी, ये प्रोग्राम जो है वोकेशनल स्टडीज का, ये तो 3 साल का प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको 3 साल बाद एक वोकेशनल डिप्लोमा मिलेगा और इस डिप्लोमा के बाद क्या होगा? इस डिप्लोमा के बाद आपका मतलब एंड में एक एग्जाम होगा जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है। ठीक आप है। उसको क्लियर करने के बाद जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में या अल्टनहाइम में कर रहे हैं, तो आप वहाँ बाद में भी काम कर सकते हैं। तो वहाँ फुल टाइम सैलरी क्या मिलेगी फिर? फुल टाइम सैलरी आपको 3000 to 4000 यूरोस के बीच में मिलेगी। ये बात कंफर्म है? ये बात कंफर्म है। आपने खुद चेक करी है बात को? हाँ, मैंने ऑनलाइन चेक करी है। चेक करी है। तो आप जैसे वहाँ पे जाते भी होगे तो आप काफी लोगों से मिलते भी होगे जो लोग यहाँ हाँ, तो पढ़ते मेरे हैं। और सारे मतलब कलीग्स हैं, उन सबसे बात होती रहती है, तो बताते हैं कि हाँ 3500 है, किसी की 34 है, तो ऐसी इन बिटवीन रहती है। और आपका एक्सपीरियंस गेन होगा तो आपकी और सैलरी बढ़ती जाएगी। ओके, ग्रेट। सो बेसिकली ये जो करियर पाथवे था, थोड़ा सा मैंने इसको इलाबोरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि करियर में एकेडमिक में। फिर से रिपीट करते हैं एक बारी। क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ मैं। मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया सेकेंड ईयर में, या मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, या मैं फार्मेसी के 4th ईयर में हूँ। मेरी एज 18 से 24 साल के बीच में है और मैं जर्मनी में 3 साल के लिए अगर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे आता हूँ तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे, राइट? बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है जी। और इसके अंदर B2 लेवल में जैसे पहले बताया, B2 लेवल आपको इंडिया से करके आना ये मैंडेटरी है और आपको यूरेशिया ही करा रहा है बेसिकली ना। आपने ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन कर लो और ऑफलाइन करना ऑफलाइन कर लो। ठीक है जी। इतना तो अब भाई जर्मनी आने के लिए तो ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, सबको पता है बात। तो आपको भी ब्लॉक अकाउंट चाहिए था? नहीं, मुझे ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने दिखाया ना कि मैं आते ही फर्स्ट मंथ से मुझे सैलरी मिल रही है। ओके, तो ब्लॉक अकाउंट की कोई नीड ही नहीं है आपको। तो यही तो बेनिफिट है इस पूरे वोकेशनल एकेडमिक का कि आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, आपके ऊपर कोई बर्डन ही नहीं है। फिर भाई ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, ठीक है, तो कोई आईएलटीएस तो चाहिए होगा पक्का? आईएलटीएस भी नहीं चाहिए आपको, बस जर्मन B2 चाहिए, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आईएलटीएस भी नहीं चाहिए, आपको ब्लॉक अकाउंट भी नहीं चाहिए, तो फिर पक्का डेट तो मिलेगी नहीं आपको मेसी में, क्योंकि जो जर्मनी से मेसी में डेट तो मिलती नहीं आराम से इतने। कैसे नहीं मिलेगी? क्योंकि आपको सबसे ज्यादा नीड है यहाँ, तो वो आप उन्हें दिखाएंगे कि मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास सब कुछ है। आप उन्हें मैसेज करेंगे, बाकी युवराज ही आपको हेल्प करेगा कि आपको अपॉइंटमेंट दिलाने में, तो वो इजीली आपको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये वो डेटें नहीं है, आपको मिलेगी वर्क परमिट की डेट, जिसके लिए ये आपको एक्सप्रेस डेट देंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत डिमांड है इन लोगों की जो वोकेशनल कोर्सेज में आ रहे हैं। गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट क्लियर पॉलिसी है। सो स्टूडेंट्स प्लीज इसे कंफ्यूज ना करें। अगर आपने जर्मनी आना है और आते ही आपको सैलरी चाहिए, आप चाहते हैं कि आप एक वोकेशनल कोर्स करें ताकि आपका स्किल जो है वो डेवलप हो और आपको जॉब मिलने में दिक्कत ना हो,
तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें तो कोई मतलब बेसिकली मैं कहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स को B2 लेवल करना ही पड़ रहा है, और एक मिनट, मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ कि भाई जर्मनी आने से पहले आप एटलीस्ट A2 तो पढ़ ही लो, तो 2 ही लेवल रह गए मेरे, 2 ही लेवल। B1 B2 रह गया। सो क्या ये B2 लेवल करने से एक्चुअल में आपको लगता है कि हाँ आपके आने के बाद आपको बेनिफिट हुआ है, आप यहाँ पे आके कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल बेनिफिट रहता है। अगर आप इंडिया से करके आ रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप यहाँ आके एनवायरनमेंट आपको मिलता है, फिर आप और ज़्यादा सीख सकते हो। तो हम ऐसे सीखते हैं वो अलग होता है, हम यहाँ रह के सीखना वो अलग बात है। ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पर क्योंकि जब तक आपका B2 नहीं होगा तब तक आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, तो इसलिए B2 तो चाहिए, चाहे आप जहाँ मर्जी बैठे हो। B2 मैंडेटरी है। बैठ रही है, आप जर्मनी बैठे हो B2 ले लो, हम आपको ये प्रोग्राम दे देंगे। अगर आप इंडिया में हो तो ले लो, अगर आप कहीं लातविया में हो या कनाडा में हो, कहीं भी अगर आप हो और अगर आप B2 लेवल अटेन कर सकते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। बिल्कुल। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप आ गए, आपने अपनी एजुकेशन ले ली, आप अपनी पढ़ाई भी करते हो, तो ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है वोकेशनल का, इसमें कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे काम करते हो? बेसिकली ये आता है कि आपके पूरे 3 इयर्स में आधा-आधा मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा। लेकिन नॉर्मली जो हमारा चलता है 1 मंथ स्कूल, 1 मंथ ट्रेनिंग। ओके, और कितने घंटे काम कराते हैं आपसे? ये 8 आवर्स की शिफ्ट होती है हमारी। बस बस मतलब कोई ओवर टाइम फालतू नहीं है कि कोई जो ओवर टाइम नहीं कोई है। स्लेवरी नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि पैसे दे रहे हो तो बस 8 के 15 घंटे काम करा नहीं, लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेट। और अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो एक्स्ट्रा पैसों के लिए? एक्स्ट्रा आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। अच्छा। बाकी आप टाइम के हिसाब से वो आपसे करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। एक और बात मुझे बताई गई यूरोशिया से कि भाई अगर आप चाहो तो आप इस 1000 यूरो के अलावा भी बाहर काम कर सकते हो किसी और एम्प्लॉय के लिए, आपको काम करना अलाउड है 10 घंटे। जी, वीज़ा अलाउड करता है हमारा 10 घंटे ज़्यादा। यानी वो एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा वो आप करते हो आजकल? आप पर्सनली कर रहे हो? पर्सनली हाँ कर रहा हूँ। कर रहे हो, क्या करते हो एग्जैक्टली? मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि आप चलो रेस्टोरेंट में करते हो, ये जो वोल्ट वाला बहुत मैंने देखा है आजकल काफी चल रहा है यहाँ पे, जो बच्चा मुझे मिलता है सर मैं वोल्ट पे काम करता हूँ, ये मिल जाता है काम? वोल्ट वाला तो मिल जाता है, आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक और है, जैसे पार्ट टाइम आप ढूंढ रहे हो तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको आसानी से मिल जाएगी। मिल जाएगी। सो मतलब एज ए इंडियन स्टूडेंट आप नॉर्थ इंडिया से हो, आप यहाँ पे आ गए हो, तो मैं मेरा हमेशा मानना है नो एक्सपीरियंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस, राइट? सो आपको लगता है कि जो डिसीजन लिया इंडिया में, देखो इंडिया में बैठ के लिया था, कोई ना कोई मेरे ऐसा होगा, किसी ना किसी ने तो आपको बताया होगा ना इसके बारे में, तो क्या आपको लगता है कि डिसीजन सही था या गलत था आज की डेट में? आज की डेट में डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि आप यहाँ आ रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीखने के साथ साथ आपको पेमेंट भी मिल रही है। दैट्स द बेनिफिट। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप यहाँ बहुत सीख रहे हैं, आपकी जर्मन इंप्रूव हो रही है। आप मतलब जहाँ हॉस्पिटल में काम करेंगे सारे जर्मन्स मिलेंगे आपको, मतलब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सब जर्मन्स अच्छे होते हैं, सब बढ़िया रहता है। आप ग्रेट, सुपर, thank you ji, thank you so much for joining us, and I'm sure we'll be happy to share this video with a lot of our students. और जैसे हमें कुछ कमेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं पेड वर्क परमिट के ऊपर, 12th पास हो, मैं फिर से बोलूंगा 28 से 24 साल के हो, नीचे कमेंट करो, अपने नंबर से हमें कॉल करो और हमारे साथ एक पर्सनल मीटिंग फिक्स करके अपनी पूरी डिटेल डिस्कशन लो कि किस तरह हम आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.